So we start our topic. So yesterday we have already started the chapter number 2, that is process management and synchronization. Yesterday we have seen the job and process scheduling, how the process is being scheduled, how the operating system schedule the particular job or processes, and uh, give the particular process which will executing in the main memory. So there are three types of operating queues, that is job queue, ready queue, and device queue. How we have seen how a particular process is come into the ready queue, and how that particular process will get the time of CPU, and how it is being executed in the main memory. So then we have seen the different type of process scheduler, that is long term, short term, and medium term scheduler. We have seen the difference between the long term and short term, and also the medium term scheduler. So today we are going to discuss the scheduling concept. So process scheduler schedules the different processes to be assigned to the CPU based on a particular scheduling algorithm. So whenever any process is created and that particular processes want to execute in the main memory, at that time the process scheduler algorithm is being used, and that particular process is get the time of CPU. So there are most popular six popular process scheduling algorithm which we are going to discuss. So there are six process scheduler. The first one is first come first serve scheduling algorithm. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो भी प्रोसेस पहले आता है उसको क्या करेंगे, सर्व करेंगे. दैट इज द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग, दैट इज FCFS. Then second scheduling algorithm, that is the shortest job next, that is also called SJN scheduling. Then next algorithm, that is the priority scheduling algorithm. According to the particular priority of the process, that process get the time of CPU. Then shortest remaining time, round robin scheduling, and multiple level queues scheduling. So these are the most popular six scheduling algorithm. So according to this particular scheduling algorithm, process will get executed in a CPU or in a processor. So this algorithm may be or either it non-primitive or primitive. So yesterday we have seen what is a non-primitive and primitive algorithm. Non-primitive algorithm are designed so that once a process enter the running state, it cannot be preempted until it complete its allotted time. कौन सी भी प्रोसेस एक बार प्रोसेस में आ जाए, प्रोसेसर में आ जाए, सीपीयू में आ जाए, सो दैट विल नॉट बी प्रिम्प्टेड, उसको नॉक किया नहीं जाता और जब तक वो पूरा एग्जीक्यूट नहीं होता. दैट इज अ नॉन प्रिमिटिव algorithm. And what is meant by primitive algorithm? That particular process can be stopped at any time if the higher priority process has come, then the previous ones has been stopped. So that is a primitive algorithm. So this algorithm either a non-primitive or primitive. Understood what is meant by non-primitive and primitive? Yes. Yes, sir. Non-primitive algorithm and primitive algorithm. So this algorithm may be non-primitive or a primitive. So we are going to see the first algorithm, that is first come first serve, that is FCFS. So job are executed on the first come first serve basis. जो पहले आया उसको CPU क्या करेगा, उसको प्रोसेसर क्या करेगा, सर्व करेगा. So it is a non-primitive और pre-imperative scheduling algorithm. Either ये non-primitive हो सकता है या primitive हो सकता है. So there are this particular algorithm comes in two categories, that is non-primitive and also in a
primitive category. So this algorithm is very easy to understand and very easy to implement when a particular process is come. So according to the first come first serve basis, this algorithm serves to the different processes. Then its implementation is based on a FIFO queue. So we have seen the first in first out queue. The same way this algorithm works, that is first come first serve. Poor in performance and as average wait time is very high. अभी उसका wait time क्या होता है? It's very high, so that's why the performance is poor. So we will see when you see the diagram. So this is process P0, arrival time is 0, execute time is 5, and service time is 0. So arrival time means what? When this particular process is created, on that particular time that particular will come into the processor, or that particular process get the CPU, that is arrival time. हम इसको सेकंड में मान लेते हैं। पी जीरो का अराइवल टाइम क्या है? 0 सेकंड पे आ गया, और उसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा? 5 सेकंड लगे। अंडरस्टूड? सर्विस टाइम क्या होगा उसका? 0। उसको सर्विस टाइम दिया है 0, उसको सर्विस करने के लिए 0 टाइम लगा सीपीयू को। P1 P1 को अराइवल टाइम है 1, मीन्स 1 सेकंड में होने के 1 सेकंड को होने के बाद वो आ गया। एग्जीक्यूट टाइम उसको लग गया 3, एंड सर्विस टाइम उसको लग गया 5 सेकंड। उसको सर्व करने के लिए कितने लगे? 5 सेकंड। देन P2 आया अराइवल 2 सेकंड पे, एग्जीक्यूट टाइम लगा उसको, एग्जीक्यूट प्रोसेस होने के लिए इतना टाइम लगने वाला है 8, सर्विस टाइम होगा 8। P3 अराइवल टाइम 3, एग्जीक्यूट टाइम 6, एंड सर्विस टाइम 16। सो वी विल सी बाय द डायग्राम। अभी आपको डायग्राम दिखाई दे रही है सबको? यस? Yes. हाँ नहीं तो बोलिए। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. आवाज ज़रा जोर से बोलिए, मुझे कम सुनाई देता है थोड़ा। आवाज बहुत लो है आपका। अभी देखिए प्रोसेस P0 अराइवल टाइम क्या था? 0। ये 0 आ गया, उसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा? 5 सेकंड। सो ये यहाँ से शुरू हो गई और 5 सेकंड तक ये प्रोसेस चली। एग्जीक्यूट टाइम दैट इज P0। अंडरस्टूड? कितना लगा उसको टाइम? एग्जीक्यूट टाइम 5 सेकंड फॉर एग्जांपल। तो 0 to 5 ये प्रोसेस इतना देर चला P0। दूसरी प्रोसेस आ गई P1, इसके बाद आ गई P1, उसको एग्जीक्यूट टाइम कितना लगा? 3, मीन्स ये यहाँ पे आ गई। 5 सेकंड होने के बाद P1 आ गई, तो एग्जीक्यूट उसको टाइम कितना लगा? एग्जीक्यूट टाइम कितना है उसका P1 का? प्रांजलि, आकांक्षा, समाधान? 3 seconds. हेलो? 3 seconds, sir. 3 सेकंड। तो यहाँ पे कितना हो गया? P0 ने पहले 5 सेकंड तो उसको लिए गए, P0 को लिए, तो इसके बाद P1 आ गया, तो 5 से आगे 3 सेकंड कितने होते हैं? 5 इंटू 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, तो उसको कितना लगा? 8। ठीक है, बाद में आ गया P2, अराइवल टाइम 2, एग्जीक्यूट टाइम कितना लगा? 8। अभी यहाँ पे आ गया P2, इसको कितना लगा? 8 + 8 कितना हो गया? एग्जीक्यूट टाइम कितना लगने वाला है इसको? 8 सेकंड फॉर एग्जांपल। 8 सेकंड P2 को लगने वाला है यहाँ से यहाँ तक 8 सेकंड। तो इसको कितना होगा? 8 से चालू हो गया, 8 सेकंड से चालू हो गया, और ख़त्म कहाँ पे हो गया वो? 16 पे। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट P3 प्रोसेस आ गया। P3 प्रोसेस P3 प्रोसेस थर्ड पे आ गया, उसको एग्जीक्यूट टाइम कितना लग गया? 6। तो यहाँ से 6 कितना आ गया? 16 + 6 22। तो ये 16 पे आया, उसको सर्विस टाइम लगा 16 पे। ये देखिए 16 पे P3 कब किधर आ गया? 16 पे। अंडरस्टूड? दिस P3 16 सेकंड होने के बाद आया, यहाँ से
आगे उसने 6 सेकंड लिए एग्जीक्यूट होने के लिए। अंडरस्टूड दिस डायग्राम? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे देखो सर्विस टाइम है P0 को 0 यहाँ पे आ गया, P1 को सर्विस टाइम कितना लगा 5, यहाँ पे P1 आ गया, 5 सेकंड होने के बाद ही उसको सर्विस मिली CPU की, दैट्स वाई ईयर 5। P2 को कितना है सर्विस टाइम 8, ये देखिए 8 यहाँ पे आ गया आपका P2, ये इधर से एग्जीक्यूट होना चालू हो गया, लेकिन P2 ने कितना वक्त लगा P2 को एग्जीक्यूट करने के लिए? यस, हाउ मच टाइम विल रिक्वायर द प्रोसेस P2 फॉर इट्स एग्जीक्यूशन? 8 seconds. 8 सेकंड। तो यहाँ से शुरू हो गया, 8 सेकंड होने के बाद वो आ गया और उसको प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए 8 सेकंड लगेंगे। इसके वजह से 8 + 8 कितना होगा यहाँ पे 16। यहाँ पे शुरू हो गया P2, यहाँ पे क्या हो गया खत्म हो गया, 16 सेकंड होने तक वो खत्म हो गया। तो 16 सेकंड पे कौन आ गया P3, सर्विस टाइम उसका आ गया 16। अंडरस्टूड? उसको कितना टाइम लगा एग्जीक्यूट होने के लिए 6, 16 के आगे 6 कितने हो गए? Yes, 22. 22। सो P3 यहाँ से इधर आ गया 16 सेकंड होने के बाद, और उसको 6 सेकंड लगने वाले थे उसको प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ से शुरू हो गया उसका प्रोसेस और यहाँ पे खत्म हो गया, दैट इज 22, 16 to 22। उसका सर्विस टाइम था P3 का 16, P2 का सर्विस टाइम है 8, P1 का सर्विस टाइम है 5 और P0 का सर्विस टाइम है 0। अंडरस्टूड? Yes, sir. So we will see, Yes, sir. okay, so we will see the wait time. So wait time is service time minus arrival time। उन्होंने arrival time दिया है, service time minus arrival time, that is a wait time। So we will calculate the wait time 0 minus 0। अभी P0 का wait time सर्विस टाइम क्या था, सर्विस टाइम 0 एंड अराइवल टाइम क्या था, दैट इज 0। 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। वेट टाइम हो गया उसको 0, उसको कुछ वेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, आते ही वो क्या हो गया एग्जीक्यूशन उसका शुरू हो गया। अभी P1 ने कितने देर वेट किया हम देखेंगे। P1 का क्या था सर्विस टाइम, दैट इज 5 एंड उसका अराइवल टाइम क्या था, 1 सेकंड होने के बाद वो आया था। 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 दैट इज 4। तो उसको वेट टाइम कितना वेट करना पड़ा उसको 4 सेकंड। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट P2। अभी P2 का देखेंगे हम। P2 का क्या है सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब P2 है यहाँ पे, P2 को कितना सर्विस टाइम लगा 8, अराइवल कब हो गया था वो 2 पे, 8 माइनस 2 दैट इज 6। द सेम वे P3 वेट टाइम इज इक्वल टू सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम। P3 का सर्विस टाइम था 16 और कब आया था अराइवल टाइम 3, तो 16 माइनस 3 दैट इज 13। So this way we can calculate the wait time। wait time is equal to service time minus arrival time। arrival time वो देते हैं हमटे को, हमें ये निकालना पड़ता है wait time। so average wait time we can calculate 0 plus 4 plus 6 plus 13 divided by 4। why divided by 4? because there are 4 processes, that is P0, P1, P2 and P3, that's why divided by 4। so average wait time is 5.75। एवरेज हर प्रोसेस को अगर हमने एवरेज निकाला तो उसको वेट करना पड़ा 5 सेकंड के लिए, 5.75 सेकंड के लिए वेट करना पड़ेगा। वो सेकंड नहीं होता है, बहुत मिली सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है, लेकिन हम एग्जांपल के लिए हम सेकंड बोलते हैं उसको। इतना देर नहीं होता है 5.75 सेकंड, बट हमारे समझने के लिए, अंडरस्टैंड होने के लिए हम सेकंड बोलते हैं। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. एवरेज वेट टाइम। अभी एवरेज वेट टाइम कैसे निकालना है, जैसे कि आपने ये सब वेट टाइम निकाला। अभी वेट टाइम P1 का आ गया 0, P0 का आ गया 0, P1 का आ गया 4, P2 का आ गया 6, P3 का आया 13। सो 0 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 4। सो 10 प्लस 13 दैट इज 23, 23 डिवाइडेड 4 दैट इज 5.75।
अंडरस्टूड? तो Yes, sir. एवरेज वेट टाइम होगा उसका, दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का 5.75. देन हेलो सर। नेक्स्ट एल्गोरिथम हम देखते हैं, समझ में आ गया ये? सर सेकंड में आया है ना? हाँ, एवरेज एवरेज टाइम सेकंड में आया है ना? क्या सेकंड में नहीं रहता वो? हाँ। टाइम बोलते हैं उसको, इतना देर नहीं रहता है सेकंड, हम उसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, वो मिली सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकंड होता है वो। ओके अंडरस्टूड? सर। हम टाइम बोलते हैं उसको 5.75, सेकंड में नहीं रहता वो, हम समझने के लिए मैंने सेकंड बोला है उसको। अंडरस्टूड? ओके। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, that is SJN. So this is also known as shortest job first or SJF. शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, इसका मतलब क्या है? जिसका जॉब एग्जीक्यूट होने के लिए कम समय लगता है, बहुत छोटा जॉब है, तो वो पहला क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज अ नॉन प्रिमिटिव प्रीमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ये दोनों कैटेगरी में आता है। आइदर दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम मे बी नॉन प्रिमिटिव और आइदर it may be primitive scheduling algorithm. So best approach to minimize the waiting time, जो waiting time है उसको क्या करना है, हमें minimize करना है। This is the approach of a shortest job next algorithm. It is very easy to implement in a batch system where a required CPU time is known in advance. अभी ये इम्प्लीमेंट करने के लिए बैच सिस्टम में वेरी इजी है, but which require the CPU time known in advance. That is the shortest job. Next, impossible to implement in an interactive system where required CPU time is not known, and the processor should know in advance how much time process will take. So when the operating system want to implement this type of algorithm, so operating system should know how much time will require that particular process to execute, and it it should know in advance how much time process will take to execute. So here उन्होंने दिया है अराइवल टाइम 0 1 2 3, एग्जीक्यूशन टाइम यहाँ पे है, सर्विस टाइम हमने देखा है, सर्विस टाइम अभी सर्विस टाइम यहाँ पे है 0 5 14 एंड 8। अभी ये टेबल दिया है उन्होंने, अराइवल टाइम भी दिया है, एग्जीक्यूशन टाइम कितना वक्त लगेगा, उसका सर्विस टाइम भी दिया है। शॉर्टेड जॉब फर्स्ट, जो जिसका समय कम लगेगा। अभी ये इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोसेसर को क्या होना चाहिए, पहले से मालूम होना चाहिए कि उसका टाइम कितना लगने वाला है उसको एग्जीक्यूट के लिए। इट शुड नो इन एडवांस हाउ मच टाइम that particular process will take to execution. So this is process, arrival time 0 1 2 3, execution time उसको कितना execute time लगने वाला है 5 3 8 6, and उसका service time दिया है 0 5 14 and 8. So waiting time of each process is as follows. So we will calculate the waiting time, that is waiting time हम कैसे calculate करते हैं, बोलो? सर्विस टाइम माइनस वेटिंग टाइम, Arrival time. सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम। Arrival. ये दिया जाता है आपको सर्विस टाइम। सर्विस टाइम क्या है? 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, P1 P0 के लिए दैट इज 0, P1 के लिए सर्विस टाइम है 5 माइनस अराइवल टाइम दैट इज 1, सो 5 माइनस 1 दैट इज 4। देन P2 के लिए सर्विस टाइम था 14 माइनस 2 दैट इज 12। सर्विस टाइम, इसको सर्विस देने के लिए प्रोसेसर को कितने सेकंड लगे? फॉर एग्जांपल 14, तो 14 माइनस 2, वो कब आया था? 2 सेकंड के बाद। उसको सर्विस देने में 14 सेकंड लगे। 2 14 माइनस 2 दैट इज 12, P3 इज इक्वल टू 8 माइनस 3 दैट इज 5, दैट दिस इज 8 माइनस दिस इज 3 दैट इज 5।
So calculate the average waiting time for this process. मुझे बताओ कितना आता है, कैलकुलेट करके बताओ मुझे एवरेज वेट टाइम फॉर दिस एल्गोरिथम. यस, कितना आ गया? 5.25. 5.25. कैसे आया बताइए, कैसे कैलकुलेट किया आपने? 0 plus 4 plus 12 plus 5 divided by 4. हाँ, 4 + 12 कितने हो गए? 16. 16 + 5 21. एम आई राइट? 21 divided by 4. So average waiting time 21 divided by 4, that is 5.25. So this way we have to calculate the average wait time. एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, calculate the average wait time for this particular process, और आपको ये टेबल दिया जाता है, arrival time, execute time and service time. From this particular table you have to calculate the average wait time for that particular scheduling algorithm. So you have to write the processes and waiting time. You have to calculate the waiting time. Waiting time is nothing but it is, क्या होता है? Waiting time is equal to, कौन बताएगा? Waiting time is equal to Service time minus arrival time. Service time minus arrival time. service time minus arrival time. So you have to calculate the waiting time, and according to the waiting time you are going to calculate the average wait time of that particular process. अभी यहाँ पे 4 क्यों लिया हमने divide by 4? Because there are 4 processes. That's why we have to divide by 4. So 21 divided by 4, that is 5.25. नेक्स्ट, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग. अभी प्रायोरिटी क्या होती है? अभी ओनली दिस पर्टिकुलर algorithm is a non-primitive algorithm. Priority scheduling is a non-primitive algorithm, and which is the most common scheduling algorithm in the batch system. Where the batch system is used, there the priority based scheduling algorithm is used by the operating system. So the processes are executing according to its priority. प्रायोरिटी के हिसाब से प्रोसेस क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है. फॉर एग्जांपल, ईच एंड एवरी प्रोसेसेस हैज गिवन द प्रायोरिटी. अभी वो प्रायोरिटी कैसे डिसाइड की जाती है? सो प्रायोरिटी इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच टाइम it required to execute, how much memory is required to execute that particular process. So according on this particular basics, the priority is given to each and every processes. So that is decided by the operating system. So the processes which have the higher priority, that particular process will get executed. अंडरस्टूड? जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी हायर है वो पहले क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद लोअर प्रायोरिटी की प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है. अभी ऐसा भी हो जाता है कि दो प्रोसेस की प्रायोरिटी एक ही है. फॉर एग्जांपल P0 की प्रायोरिटी है 1 और P1 की प्रायोरिटी है 1. then at that time that particular operating system will decided according to the first come first serve. जो पहले प्रोसेस आया है उसको पहले क्या करेंगी, एग्जीक्यूट करेंगी. जब कि दो प्रोसेस की प्रायोरिटी सेम हो उस कंडीशन में that particular algorithm operating system is decided first come first serve algorithm, and according to the first come first serve, that particular process will get executed in the main memory. So each process assign a priority. Process with the highest priority is to be executed first, and so on. Process with the same priority are executed on the first come first serve basis, and priority can be decided based on the memory requirement, time requirement, or any other resources
which is required by that particular process. So the particular table of processes and their arrival time, execution time and priority, here we can consider one is the lowest priority. अभी ये आपको टेबल दिया गया है प्रोसेस दैट इज P0, P1, P2, P3, अराइवल टाइम है 0, 1, 2, 3 उसको एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम लगता है 5, 3, 8, 6, देन प्रायोरिटी है उसकी 1, 2, 1, 3। अभी ये प्रायोरिटी कौन डिसाइड करता है? यस अभी P0 की प्रायोरिटी कितनी है? 1, P1 की कितनी है? 2, P2 की कितनी है? 1, एंड P3 की है 3। अभी ये प्रायोरिटी कौन डिसाइड करता है? दैट प्रायोरिटी इज डिसाइडेड बाय दैट पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू memory requirement, time requirement and the other resources requirement by that particular process। इस हिसाब से प्रायोरिटी डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी प्रोसेस P0 को प्रायोरिटी दिया है 1, P2 को दिया है 1, बट इसमें से पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा? जिसकी प्रायोरिटी क्या है? हाई। बट यहाँ पे इस कंडीशन में क्या है? दोनों की प्रायोरिटी क्या है? सेम है। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया है उसको पहले क्या करेगा प्रोसेसर? एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जांपल मान लो P0 पहले आया तो पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, बाद में P2 को एग्जीक्यूट करेगा। अभी प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में क्या होता है? जिसकी प्रायोरिटी हाई है वो पहले क्या होगा? यस एग्जीक्यूट होगा। पहले एग्जीक्यूट होगा। अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कौन सी है? P3 हाँ P3 P3, P3, तो पहले वो एग्जीक्यूट होगा। अभी सबसे कम प्रायोरिटी किसकी है? P2 P0 P0, P0 और P2 बराबर। तो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा P3, उसके बाद होगा P1 और उसके बाद में होगा P0 एंड P2। अंडरस्टूड? P0 पहले क्यों एग्जीक्यूट होगा? पहले वो आया था बराबर। अराइवल टाइम सबसे पहले जो आया था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि उस दोनों की प्रायोरिटी क्या है? सेम है, उसके वजह से। अभी उन्होंने सर्विस टाइम दिया है, P0 को लगेगा सर्विस टाइम 0, P1 को सर्विस टाइम लगा 11, P2 को सर्विस टाइम लगा 14 एंड P3 को सर्विस टाइम लगा 5। सो वेटिंग टाइम फॉर ईच प्रोसेस, वेट टाइम इज इक्वल टू 0 माइनस 0 सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम। P1 को लगा 11 माइनस 1, 11 माइनस 1, देन 14 माइनस 2, 14 माइनस 2, देन 5 माइनस 3 दैट इज 2। अब इसको इसका निकालो एवरेज वेट टाइम। Six. So average wait time is 6. 24 divided by 4, that is 6. So this way you have to calculate the average wait time। ये टेबल आपको दिया जाता है, प्रायोरिटी दिया जाती है। सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेबल यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज वेट टाइम। तो वेट टाइम कैसा निकालना है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वेट टाइम टू कैलकुलेट द वेटिंग टाइम? Service time minus arrival time. जोर से बोलिए। Service time minus arrival time. Service time minus arrival time। Then next algorithm, that is shortest remaining time। So shortest remaining time, also it is called as SRT, is a primitive version of SJN algorithm। जैसे कि shortest job next था, so it is a primitive version of the shortest job next algorithm। The processor is allocated to the job closest to the completion, but it can be preempted by the newer ready job with shorter time to completion। So if a particular process is being executed in the CPU in the main memory, but a new process has come, a newer ready job has come which have the shortest time for the completion, which has the shortest time for the execution, then the prior processes which is being executed is stopped and that goes to the suspended queue, and the newer
job or newer process which has the shorter time for the execution is being executed. That is the shortest remaining time. So this particular algorithm is very impossible to implement in interactive system where the required CPU time is not known, and often used in the batch environment where short job need to give the preference. So this is a primitive version of shortest job next algorithm. नेक्स्ट, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. सो राउंड रॉबिन में क्या होता है? राउंड रॉबिन इज आल्सो प्रिमिटिव प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. अभी प्रिमिटिव कौन सा है? ये भी प्रिमिटिव है. आपका शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम भी प्रिमिटिव है. राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग भी क्या है? प्रिमिटिव एल्गोरिथम है. प्रिमिटिव मीन्स व्हाट? उसको बीच में उस प्रोसेस को क्या करेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? स्टॉप करता है. प्रिमिटिव प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में क्या है? अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट, उसका काम चालू है एग्जीक्यूशन का, बीच में उसको रोक देता है और दूसरी प्रोसेस क्या करता है? प्रोसेसर अलोकेट करता है एग्जीक्यूट करने के लिए. अंडरस्टूड? दैट इज अ प्रिमिटिव प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. सो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज आल्सो primitive type process scheduling algorithm. So each process is provided a fixed time to execute. It is called as quantum. So राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में एक फिक्स टाइम दिया जाता है, जैसे कि क्वांटम दिया जाता है 3 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड. सो ईच एंड एवरी प्रोसेस गेट दैट पर्टिकुलर फिक्स टाइम टू एग्जीक्यूट. That is called as a quantum. And once a process is executed for a given time period, it is preempted and other process is executed for a given time period. वो टाइम खत्म होने के बाद वो प्रोसेस को स्टॉप किया जाता है और दूसरी प्रोसेस उसमें एग्जीक्यूट हो जाती है. अंडरस्टूड? एक फिक्स टाइम दिया जाता है राउंड रॉबिन में. हर प्रोसेस को उस टाइम में क्या करना है? एग्जीक्यूट होना है. फॉर एग्जांपल, जैसे कि प्रोसेस P0 है, उसको कंप्लीशन के लिए लगते हैं 5 सेकंड. अगर राउंड रॉबिन का क्वांटम है 3 सेकंड, तो पहले 3 सेकंड में जितना प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उतना क्या होगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा. 3 सेकंड होने के बाद वो प्रोसेस को क्या किया जाएगा? स्टॉप किया जाएगा. देन नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में आएगी और वो कंप्लीट होने के बाद वापस जो पहली प्रोसेस थी जिसका 2 सेकंड टाइम बचा था वो एग्जीक्यूट हो जाएगी. अंडरस्टूड? दैट इज अ प्रिमिटिव Yes, sir. प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, एंड each process is provided a fixed time to execute, that is called as quantum. And once a process is executed for a given time period, it is preempted and the other process executes for a given time period. And context switching is used to save the status of preempted processes. So when a particular process is preempted, then the context switching method is used to save the status of that particular process. उसने पहला कितना खत्म किया है काम और कितना काम बाकी है. So that for saving this particular status, that uses the context switching. अभी यहाँ पे देखिए क्वांटम दिया है 3 प्रोसेस के लिए. पहले प्रोसेस आया P0, उसने लिया 3 सेकंड. बाद में आया P1, उसने लिया 3 to 6 सेकंड. बाद में आया P2, 6 to 9, P3, 9 to 12. हर क्वांटम कितने का है? 3 का. P0 अभी कब एग्जीक्यूट होगा? उसको 5 सेकंड लगते थे. P0 अब कब कितना लगेगा? पहले 3 तो यहाँ पे ख़त्म हो गए, यहाँ पे पहले 3 यहाँ पे ख़त्म हो गए, बचे 2, तो यहाँ पे 12 to 14. P2 को कितना वक्त था? P2 को कितना वक्त था रे? 8. पहले 3 गए, यहाँ पे पहले 3 गए P2 को, यहाँ पे 3 गए, 3 और 3 6, वापस कितने रह गए? 3. तो बाद में खत्म होने के बाद यहाँ पे आ गया P2 वापस. अंडरस्टूड? P0, P1, P2, P3. बाद में वापस आ गया P0, बाद में आया P2, वापस P3, और टाइम बच गया वापस P2 का. P2 को कितना टाइम था?
कितना टाइम अलोकेट किया था एग्जीक्यूशन के लिए? 8 मिनट 8 सेकंड। अंडरस्टूड? यस सर। P0 को कितना वक्त लग रहा है एग्जीक्यूशन के लिए? 5 सेकंड। P1 को कितना लग रहा है? 3 सेकंड। P2 को कितना लग रहा है? 8 सेकंड। P3 को कितना लग रहा है? 6 सेकंड। अभी देखिए P0 को 5 सेकंड है, बट राउंड रॉबिन में क्या होता है, हर प्रोसेस को एक फिक्स टाइम दिया जाता है। जैसे कि इस एग्जांपल में हमको कितना टाइम दिया है? 3 सेकंड एक क्वांटम का दिया है, तो P0 को लगते हैं 5 सेकंड एग्जीक्यूट होने के लिए। तो पहले 3 सेकंड दिया है हर क्वांटम को। क्वांटम कितना दिया आपने को? 3 बोलिए यार seconds. फास्ट। 3 seconds. एम आई ऑडिबल? 3 सेकेंड। हाँ 3 सेकंड। तो क्वांटम इज 3 सेकंड, तो P0 को कितना वक्त लगता है एग्जीक्यूट होने के लिए? 5 सेकंड। हाँ 5 सेकंड। तो पहले P3 एग्जीक्यूट हो गया, पहले 3 सेकंड गए। अभी P2 का कितना बाकी है एग्जीक्यूट होने के लिए? 2 सेकेंड। 2 सेकंड। ठीक है, तो चला गया, ये बाहर चला गया। दूसरी आगे वाली प्रोसेस कौन सी थी? P1। P0 के 2 बचे, तो P1 एग्जीक्यूट करेंगे। P1 को थे 3 सेकंड। ये देखिए P1 को 3 सेकंड लिख के लीजिए कहीं तभी। P0 को 5 सेकंड लगते हैं, P1 को 3 लगते हैं, P2 को 8 लगते हैं, P3 को 6 लगते हैं। P0 एग्जीक्यूट हो गया पहले 3 सेकंड, बाद में आ गया P1। P1 लगते थे 3 सेकंड और P1 यहाँ पे खत्म हो गया। P2 लगते थे, P2 को कितने लगते थे? 6 सेकंड। 8 सेकेंड। 8 seconds. 8 सेकंड। तो P2 8 पहले सेकंड। 3 सेकंड इधर एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद आया था P3। P3 को कितने लगने वाले थे? 6। 6। तो पहले यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया 6, तो पहले 3 यहाँ पे गए, P3 को वापस यहाँ पे गए। अभी देखो P0 P1 P2 P3 सबके 3 सेकंड क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। यहाँ पे वापस आ गया P0, उसके कितने बाकी थे? 2 सेकेंड। 2 सेकंड। सो 12 से 12 क्या हो गया? P0। वापस आ गया P2। P2 के कितने सेकंड बाकी थे? 3 बराबर। P2 यस। के 6 से 9 पहले हो गया, वो 3 यहाँ पे हो गए और बाद में यहाँ पे 3। अंडरस्टूड? यस सर। हाँ ये हो गया P2। अभी P3 के कितने बाकी थे? यहाँ पे 3 गए और बाद में खाली थे 3, तो यहाँ पे 3 एग्जीक्यूट हो गए। और P2 के कितने बाकी थे? 2 सेकेंड। P0 P2 P1 तो खत्म हो गया था, वापस आ गया P2। P2 के बाद P3, P3 के बाद P4 नहीं है, P1 खत्म हो गया, P2 वापस बाकी है 2 सेकंड, तो यहाँ पे उसका एग्जीक्यूट हो गया 2 सेकंड, दैट इज 22। अंडरस्टूड द डायग्राम? यस सर। Yes, sir. So each process, wait time for each process, wait time is equal to service time minus arrival time. So wait time P0 का 0 minus 0 plus 12 minus 3. This is P0 सर्विस टाइम 12 माइनस अराइवल टाइम, दैट इज अराइवल टाइम था उसका अराइवल टाइम था उसका दैट इज 3। 12 माइनस 3, ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ से आ गया। बी वेट टाइम फॉर P1 दैट इज P1 यहाँ पे ही खत्म हो गया, that is 3 minus 1, that is 3 service time minus arrival time, that is 1, that is 2. then P2 को कितने बार आ गया? 3 बार, 1 2 एंड 3। पहले था 6 minus 2, that is P2, यहाँ पे 6, उसका पहले arrival time था that is 2, 6 minus 2 प्लस वापस यहाँ पे आ गए हो P2, दैट इज दिस 14 माइनस
9, -14 minus 9, this 14, this 14, और वापस यहाँ पे आ गया P2, और यहाँ पे ख़त्म हो गया था P2, दैट इज़ 9 पे, दैट इज़ 14 माइनस 9, देन 20 माइनस 17, ये क्या है P2, P2 यहाँ पे आ गया 20, और उसके पहले ख़त्म कहाँ पे हो गया था, उसके पहले दैट इज़ 17, वो ख़त्म हो गया था, दैट इज़ P2 का वेट टाइम हो गया 12, P3 का 9 माइनस 3, पहले P3 दैट इज़ P3 आ गया था 9, और उसका पहले अराइवल टाइम था दैट इज़ P3 का दैट इज़ 3, यहाँ पे देखिए अराइवल टाइम दिया था उन्होंने दैट इज़ 3, सो 9 माइनस 3 P3 प्लस P3 किधर आ गया यहाँ पे दैट इज़ 17 माइनस 12, दैट इज 17 P3 माइनस यहाँ पे P3 खत्म हो गया था यहाँ से यहाँ तक दैट इज 12, दैट इज 17 माइनस 12, दैट इज 11. Understood? So this way we have to calculate the time. Understood this? Yes, sir. P3 देखो कितने बार आ गया था, 2 बार आया था, बराबर. अभी P3 कैसे कैलकुलेट करना है, देखिए हमारे डायग्राम में P3 कितने बार है, 1 बार, और ये दूसरी बार, करेक्ट? यस. Yes, sir. हाँ, अभी P का उसका वेट टाइम कैसे निकालेंगे, सर्विस टाइम. अभी P3 का सर्विस टाइम क्या था, 9, बराबर. कब चालू होगा ये, 9 को, ठीक है. और उसका अराइवल टाइम क्या था, देखिए अराइवल टाइम दिया है पहले स्टार्टिंग में P3 का, ये देखिए P3 का अराइवल टाइम कितना है, 3. सो पहले हम यहाँ पे करेंगे 9 माइनस 3, समझ में आ गया, ये 9 माइनस उसका अराइवल टाइम दैट इज 3, प्लस अब ये 17 कहाँ से आ गया, ये P3, यहाँ पे P3 आ गया वापस यहाँ पे कब शुरू हो गया वो, 17, दैट इज सर्विस टाइम. सर्विस उसको कब मिली, 17 सेकंड को, माइनस अराइवल टाइम, माइनस कितना है, 12. अभी 12 कैसे आ गया, वो कब खत्म हो गया था, यहाँ पे पहले किस कब खत्म हो गया था, 12 पे, उसके वजह से आ गया 17 माइनस P3 पहले कब गया था, खत्म हो गया था 12 पे, दैट इज 17 माइनस 12, दैट इज 11. अंडरस्टूड? Understood? Yes, sir. Okay. So this way we have to calculate the average time. Average wait time is equal to 9. This 9 plus 2 plus 12 plus 11 divided by 4, that is 8.5. Then multiple level queue scheduling. So multiple level queues are not an independent scheduling algorithm. They make use of other existing algorithm to group or scheduling job with common characteristics. So multiple queues are maintained for the processes with common characteristics. Each queue can have its own scheduling algorithm and priorities are assigning to each queue. So here the processes are kept in the queues which have the same characteristics and which have some common characteristics that are maintained this type of processes in a similar queue or in a multiple queues, and each queue can have its own scheduling algorithm, और हर एक क्यू का अपना खुद का एक क्या होता है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है, एंड प्रायोरिटीज आर असाइन to each and every queue. So according to that particular queue, the processes are being executed. एक क्यू होने के बाद दूसरा क्यू होने के बाद तीसरा क्यू. So it has its own algorithm, that is a multiple level क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. वो क्यू में क्या होती है, सारे प्रोसेसर रखी जाती है. अभी क्यू में सारी प्रोसेस कौन सी रखती है, फॉर एग्जांपल देयर आर 4 क्यू, ए बी सी डी क्यू. तो एक ए क्यू में क्या हो जाएगा, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जिस प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, वो सारे प्रोसेसेस ए में
रखे जाएंगे। बी में कौन से रखे जाएंगे? जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेगा ऑपरेटिंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू द एग्जीक्यूशन टाइम, जैसे कि उसको कितना मेमोरी लगता है और कितना वक्त लगता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइडेड एंड द प्रोसेसेस विच हैज द सेम characteristics will be kept in a queues, and each queue has the scheduling algorithm. According to that particular scheduling algorithm, the different queues, the processes which is reside in the queues is being executed or is get the time of CPU. Understood? This is about the multiple level queue scheduling. हर एक क्यू होती है और क्यू में बहुत सारी प्रोसेस होती है जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो। ऐसे बहुत सारी क्यू होती है और वो क्यू के हिसाब से वो प्रोसेस क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर।